What's up guys, my name is Yuvraj. Welcome back to my channel UV Fit, the one place destination for fit mind, body and soul. तो जब हम फैट लॉस पे होते हैं या फिर कटिंग में होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या लगता है? दैट इज कार्डियो. वी ऑल नो दैट हमें कार्डियो करना होता है, बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कम्स इनटू आवर माइंड. व्हेन टू डू इट, हाउ टू डू इट, देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन एवरीवन्स माइंड. तो आज मैं इस वीडियो में आपके उस सारे क्वेश्चंस का सलूशन दूंगा. When you are on fat loss, the calorie intake, मतलब जो आप कैलोरी कंज्यूम करेंगे, it should be lesser than the calories that you burn. Scientific language में इसे कहते हैं calorie deficit. Apart from cardiovascular benefits, आपकी कार्डियो आपका rate of fat loss increase कर देती है. It also helps you to stick to your diet. कैसे? Let's take an example of it. जब आप कैलोरी कंज्यूम जो कर रहे हैं, it should be lesser than the calories that you burn. Now, if you do cardio, तो आपकी कैलोरी बर्न करने की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगी. इन द सेम वे आप कैलोरी कंज्यूम भी ज्यादा कर सकते हैं. तो जो आप डाइट में चीजें लेना चाहते हैं, नाउ यू कैन हैव मोर ऑप्शन. आप ज्यादा चीजें खा सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल. आप ज्यादा देर तक वो डाइट फॉलो कर पाएंगे. लेकिन कार्डियो करने का एक डाउन साइड भी होता है. अगर आप ज्यादा कार्डियो परफॉर्म करेंगे, इट स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद योर मसल साइज एंड लेंथ गेन. तो आपको जब कार्डियो परफॉर्म करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा. देयर आर टू टाइप ऑफ कार्डियो. वन इज हिट and one is steady state cardio. The difference between these two is if you do 10 minutes of HIIT workout and you do 10 minutes of steady state cardio, then the calories that you burn during HIIT workout will be way more than the calories that you burn in steady state. So how to perform it? You have to do 20 to 30 seconds of high intensity, like जो आप workout कर रहे हो उसको max output पे करना है, and after that 1 minute of low intensity workout. You don't have to take any rest. Coming to the benefits of high intensity training. In high intensity, it increases your cardiovascular health. It promotes it. It also increases your V2 max. What V2 max is वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन. मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज कर देता है. जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है. दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी और आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं. ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होने के बाद आपकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो इट इंक्रीजेस योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, रनिंग, एनी एक्टिविटी. कमिंग टू थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर इंसुलिन sensitivity. What insulin sensitivity is? Insulin is a hormone in our body. What it does is once the sugar goes into our bloodstream, it regulates it. Sugar को blood में से निकाल के cells में transfer कर देता है, उसको energy में convert कर देता है. तो it is very beneficial. तो sugar level आपके blood में कम हो जाता है अगर आपकी insulin sensitivity है, और HIIT workout आपका insulin sensitivity increase कर देता है. It interferes less with your muscle size and strength gain. How you can perform HIIT workout? You can do it on your rest days or you can do it after your workout, so that it does not hamper your regular workout. It does not decreases the energy. How many times that you have to perform HIIT workout? You can start gradually with one session per week. आपको एक हफ्ते में एक सेशन से स्टार्ट करना है. Then move it to 2 sessions and then at max you have to perform only 3 sessions per week. इससे ज्यादा आपको परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि आपकी मसल गेनिंग पे भी इफेक्ट कर देगा ओवर ट्रेनिंग के साथ. The second type of workout is LISS workout, low intensity steady state. In this workout you have to perform 20 to 40 minutes of low intensity exercise. मतलब आपको 20 से 40 मिनट ही परफॉर्म करना पड़ता है, एंड उसको भी लो इंटेंसिटी में. You can perform it 1 to 3 times per week. The downside of HIIT workout was it start hampering your
वर्कआउट बाय ओवर ट्रेनिंग, बाय मसल सोरनेस, तो आपकी रिकवरी टाइम पे नहीं हो पाती, जिस वजह से आप मसल साइज भी गेन नहीं कर पाएंगे एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल एज वेल। तो इस वजह से आई सजेस्ट आप लिस्ट वर्कआउट एंड हिट वर्कआउट दोनों को कंबाइन कीजिए। लिस्ट वर्कआउट में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे साइकिलिंग के, ब्रिस्क वॉकिंग के, लाइट जॉगिंग के। You can do it like 1 day of HIIT workout, 2 day of LIST workout in the beginning. Then after that you can do 2 day of HIIT and 2 day of LIST. Then you can move on to 2 day of HIIT and 3 day of LIST workout. The downside of LIST workout is ये आपका मसल साइज डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो लिस्ट वर्कआउट भी ज्यादा परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ये भी आपको हफ्ते में 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 बार करना चाहिए। आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एंड आप अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज द परफेक्ट वेट लॉस इज 0.7% ऑफ बॉडी वेट पर वीक। सो आप अपने पर्सनल गोल के हिसाब से इसको अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वर्कआउट एंड डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम्स योर कार्डियो। अगर आपका वर्कआउट एंड डाइट अच्छा नहीं चल रहा, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है, तो आपको कार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स जस्ट अ वेस्ट। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू। कीप एवरीथिंग इन माइंड और नेक्स्ट टाइम जब आप कार्डियो परफॉर्म करें, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। So thank you and love you all.